सारे लोग म्यूट कर लो अपने आप को। इट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल। Morning, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग 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 Good morning, sir. मॉर्निंग Good morning, sir. मॉर्निंग टू ऑल। रोल नंबर 24। Good morning, sir. मॉर्निंग। तो Good morning, लास्ट sir. क्लास में मॉर्निंग मॉर्निंग लास्ट क्लास में हम लोग जो बात कर रहे थे, या एक मिनट वेट कर लेते हैं, कुछ अभी कुछ आ ही रहा है। चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में बाबू जो हम लोग बात कर रहे थे, शायद फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर। और मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे ये बताया कि अगर आप किसी भी बिजनेस में मतलब उसके मैनेजमेंट, फाइनेंस के मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस करता कौन है? You don't expect a layman or a person who is not knowing anything about the company, about the financials, about the technicalities of the company, could manage the financial issues. If you wanted that there has to be some rigorous and some sincere financial management, then obviously you have to look for someone who is having expertise, who is having some technical background, who is having some financial knowledge and degrees as such to support his endeavor. Now, I mentioned that the first function that a finance manager has to perform is he or she must be aware or should make an estimate of the financial needs of the business. Financial needs of the business. Now, on what basis the financial need of the business can be ascertained? On the nature of the business, first thing, and secondly, the time frame. The second thing is time frame. If you were talking about the nature of the business, the nature of the business could be a manufacturing one or it can be a trading business. So if it were a manufacturing business, it would require more investments into fixed assets because you would require the infrastructure, the plant, the machinery and all. Whereas if it was a trading business, then operating capital was more required, working capital was more required, and fixed capital was required, but in less volume as far as manufacturing business was concerned. The second thing is you have to look upon if you were a financial manager or a finance manager, then are you supposed to make an estimate of a business which is already in existence or a business which is going to be established? Again, the business which is going to be established will require more investments in financial or in fixed assets. Whereas a business which is already in existence or which is in running perhaps would be requiring lesser investments in fixed assets. Isn't it? Now, once you have made an estimate, once you have made an estimate of the financial needs and requirements of the business on paper, then what next? You have to identify, these are the different sources, yeah, these are the estimates that you require. Now you need to identify as to what are the different sources from where these estimated funds are supposed to be raised. And in financial parlance, you have got only two sources of raising funds. One is debt and the other one is equity. Either you can raise money through debt or you can raise money through equity. Right? So
there are only two sources. One is debt and the other one is equity. Now, when you talk about debt, debt is supposed to be one of the cheapest source of raising finance. Why? Because the interest that you pay is subject to deduction uh, for tax, whereas equity is supposed to be the costliest form of raising finance because you need to pay dividends out of the profit after the payment of taxes and all. Now the thing is कि once you are identifying that these are the different sources of raising finance, so actually what are you doing? You are framing the capital structure of a business. You are framing what? The capital structure of a business. आप business के capital structure को frame कर रहे हैं. So what is capital structure? Capital structure is nothing but the mix of debt and equity, or the proportion of debt and equity in the capital of a business is called capital structure. Now again the thing is कि in certain circumstances debt may be more, in certain circumstances equity may be more, or they may be equal in proportion also. And sometimes project has been financed only through debt, or the project has been financed only through equity. Now it depends upon the very nature and the risk profile of the business, the stability of the earning, and there are several factors which go on to decide as to what should be the capital structure or what should be the mix of debt and equity of a business. And simply different sources will give you sense. Be brought into the business. Money has to be brought into the business. So now what is required is the execution of the estimates. The execution of the plan from where you have identified the money to be raised. तो अब आप क्या करेंगे? आप मार्केट में पब्लिक इशू लाएंगे, ऑफर लाएंगे, मार्केट में शेयर्स को आप इशू करेंगे ताकि बाजार से आप फंड को रेज कर सकें और बिजनेस में पैसा लेके आ सके, राइट? तो ये जो आप पैसा लेके आ रहे हैं बिजनेस में, this process is basically known as capitalizing the company. It is known as capitalizing the company, right? There are different theories of capitalizing the company कि आप किस तरीके से बिजनेस में पैसा लाएंगे, कितना पैसा आप ला सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोगों को पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा बहुत. उसके बाद क्या है कि जब आपने बिजनेस में फंड को रेज कर लिया, नाउ इज इट एनफ, इज इट सफिशिएंट? द आंसर इज नो. अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है कुछ कि जब पैसा आ गया, now what you need to do is you need to allocate the resources, allocate the financial resources. Allocation of financial resources का मतलब क्या हो गया? Distribution of the financial resources. जितना भी डिपार्टमेंट है आपके पास, जितना भी डिवीजन है, उन सारे डिपार्टमेंट डिवीजन में आप फंड को क्या करें? Allocate, right? अब जब आप फंड एलोकेशन की बात करते हैं, तो while allocating the funds, while distributing the funds, you should make sure कि जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो ज्यादा नहीं हो रहा है और कम भी नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा आप फंड को एलोकेट कर देंगे, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा, तो क्या होगा? फंड आइडल रह जाएगा, उस डिपार्टमेंट को उतने फंड की जरूरत नहीं है. आपने जरूरत से ज्यादा फंड दे दिया तो क्या हो गया? फंड आइडल हो गया, बेकार हो गया. और अंडर एलोकेशन का मतलब क्या हो गया? जितना रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट से आपने कम दिया. तो जब आप रिक्वायरमेंट से कम फंड एलोकेट करेंगे तो क्या होगा? बेचारा फंड के अभाव में अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाएगा वो डिपार्टमेंट. एक जगह सरप्लस दे रहे हैं, वहां पे फंड बेकार पड़ा हुआ है, दूसरी जगह आपने कम दे दिया, अब कम की वजह से वो डिपार्टमेंट काम नहीं कर पा रहा है. तो फाइनेंस मैनेजर का काम है प्रॉपर एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रायोरिटी बेसिस पे कहां पे कितना फंड एलोकेट करना है, ये आपको देखना और इस चीज की समझ विकसित करना. इसको हम लोग कहते हैं क्या? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब क्या है? जब आपने फंड को एलोकेट कर दिया,
Now, are you free as a finance manager? The question is no, not at all. शायद अभी तो मेरा काम शुरू हुआ है. Because once I have allocated the funds, I need to take the feedback. मुझे एक इस तरीके का फॉलो थ्रू बनाना पड़ेगा, फीडबैक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जहां से क्या होगा कि मुझे जानकारी मिलती रहे समय समय पे कि भाई किस तरीके से फंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है, कहीं रोड ब्लॉक तो नहीं हो गया, कई चीजें आउट ऑफ वे तो नहीं जा रही है, क्या सारी चीजें हमारे नियंत्रण में है. बात समझ रहे हैं? तो बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर यू नीड टू टेक द feedback about how the allocated funds are being utilized. कहां पे कुछ और पैसा देने की जरूरत है, कहां पे पैसा आइडल पड़ा हुआ है. अगर पैसे का यूज भी हो रहा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज भी हो रहा है, तो क्या ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? राइट? आप देखिए हर एक कंपनी का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो अपने लिए ईपीएस प्रोजेक्शंस करता है. ईपीएस कहने का मतलब अर्निंग पर शेयर. हर 3-3 महीने पे ईपीएस प्रोजेक्शन, हर 3 महीने का सेल्स प्रोजेक्शन होता है, प्रॉफिट प्रोजेक्शन होता है. तो आखिर क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि भाई हम लोग के पास एक टारगेट रहेगा, उस टारगेट से हम लोग एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाएंगे कि मैंने लक्ष्य से कितना ज्यादा या कितना कम अचीव किया. हैव आई ओवर अचीव और हैव आई अंडर अचीव? So this is how things need to be monitored. So the finance manager, once he or she has allocated the funds, the job is not done. He or she has to take the proper follow through, proper feedback in respect of utilization of financial resources. Now what next? Next comes कि भाई जब आपने फीडबैक ले लिया, सब कुछ हो गया, तो अब मेरे हिसाब से, according to me, the finest and perhaps the biggest function that you expect a finance manager to perform is what? Management of profits. Is what? Management of profits. Because every organization, why is it being established? An organization is being established for the purpose of making profits. Yes or no? So unless you are earning profits and you are managing your profits, if you are mismanaging your profits, if you are wasting your profits, then the entire effort is what? Futile. It is in vain. It is of no use. Right? आप जैसे स्टूडेंट सारा समय आपने वेस्ट कर दिया, जो आपने कमाया वो सब कुछ, या आप 6 महीने आपने खूब मेहनत की, लेकिन जब एग्जामिनेशन का समय आया तो आपने रिवीजन नहीं किया, आपने एग्जाम में आंसर पेपर में चीजों को प्रोड्यूस नहीं किया, तो आपको नंबर नहीं आएगा. तो एक बिजनेस, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, why a business is to be established? A business is established for the sake of making more and more profits. It is simple. And every business has a desire of what? Desire of expanding itself, desire of expanding itself, diversifying itself. तो बार बार आप उतने पुराने बिजनेस हाउस होके फिर आपको पैसे की जरूरत पड़े, बाजार से आप कर्जा ले, तो भैया आपने 20 साल 25 साल 30 साल क्या किया? Why didn't you manage your profits? Right? इसीलिए जब हम लोग कंपनियों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसके बैलेंस शीट पे देखते हैं रिजर्व्स कितना है उसके पास, कैश कितना है उसके पास. द कंपनीज व्हिच आर हैविंग लॉट्स ऑफ रिजर्व्स, वो कंपनी उतनी साउंड है, वो कंपनी उतनी अच्छी है. क्योंकि कल को अगर उसका एक्सपेंशन प्लान होगा तो उसको बोरो नहीं करना पड़ेगा, उसका इंटरनल सोर्स ही काफी है, वो अपने एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन प्लान में अपने इंटरनल सोर्सेस से पैसा लगा सकता है. Now, why do you require management of profit? मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट इसलिए क्योंकि वो जो प्रॉफिट आप कमाते हैं, उस प्रॉफिट से आपको टैक्सेस पे करना पड़ता है, उस प्रॉफिट से आपको
डिविडेंड्स पे करना पड़ता है, उस प्रॉफिट से आपको लोन चुकाना पड़ता है, उस प्रॉफिट से आपको रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। तो एक फाइनेंस मैनेजर का काम है कि वो कितनी खूबसूरती से, हाउ ब्यूटीफुली he or she organizes or manages the profit that the business is earning, right? So these were some of the important functions that you expect a finance manager to perform. Am I clear, class? Yes. Yes, sir. On Yeah. yes sir, ठीक है। तो एक काम करो, तो जल्दी से 5 से 6 मिनट के अंदर सारा पॉइंट लिख लो तो खुद से, फंक्शंस ऑफ या रोल ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए सारे स्टूडेंट्स। सर आप ईपीएस का एक पॉइंट बोले थे, रिसोर्स एलोकेट करने के बाद ईपीएस को एक बार और से समझा दीजिए। ईपीएस के ऊपर मैंने ये कहा था ना कि आप जब प्रॉफिट, आप जब रिसोर्स को एलोकेट करती हैं तो रिसोर्सेज के एलोकेशन का रिजल्ट आपको चाहिए ना। यस सर। रिसोर्सेज का एलोकेशन क्या, हाँ उसका रिजल्ट क्या होगा? बेटर परफॉर्मेंस, ज्यादा प्रॉफिट, इकोनॉमिक अचीवमेंट आप चाहती है कि करें। शेयर होल्डर्स के लिए हम लोग चाहते हैं कि प्रॉफिट को बढ़ाएं, कंपनी का वैल्यूएशंस बढ़ाएं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि आप कैसे ये जज कर पाइएगा, तो उसके लिए आप पहले से प्रोजेक्शंस करके रखती हैं, भाई मेरा सेल्स ये होना चाहिए, आने वाले 3 महीने का, आने वाले 3 महीने का मेरा ईपीएस प्रोजेक्शंस ये होना चाहिए, अर्निंग पर शेयर का अनुमान ये होना चाहिए, मेरा पैक ये होना चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये होना चाहिए, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये होना चाहिए, है ना। तो उस तरीके से आप जब एक प्रोजेक्शन करके रखती हैं तो उस प्रोजेक्शंस के आधार पे आपको क्या मिलता है, आप फीडबैक लेती हैं कि भाई हमने जो काम किया वो उस प्रोजेक्शंस को फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप फीडबैक नहीं लेंगी तो आपको एक्चुअल डिविएशन और परफॉर्मेंस के बारे में अंदाजा नहीं लग पाएगा। जो आपने प्रोजेक्शंस किया था उस प्रोजेक्शन से आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर पाएंगी, राइट? So this is why you Yes, require sir. a proper feedback or follow through system. यस सर, और इसके पहले एक लाइन बोल रहे थे सर, एवरी बिजनेस हैज डिजायर ऑफ Desire of what? नहीं, आप बोल रहे थे तो हम लिखते जा रहे थे वो, तो फिर हम आगे Desire बढ़े। of expanding itself, expanding and diversifying. Sir, full form of EPS. Full form of EPS is earning per share. जल्दी करो 5-6 मिनट पे। हाँ बोलो।
क्या बोल रहे हो? रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू का मतलब सेल्स। तो अगर सेल्स बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। और जब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ईपीएस बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस में क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऐसे ही काम करता है। मेक इट फास्ट, जल्दी करो। बोलो किस ग्राफ को? जब पहले जो अभी दिया है तो उसको देखो ना, लाओ। कहाँ से लिख लिया उसको? सर 5 ही पॉइंट लिखना है। कौन सा साइट है? कौन सा साइट है ये? पांच ही पॉइंट लिखे हो? 5 पॉइंट कैसे लिखे हो? ज्यादा पॉइंट हो रहा है। पहला पॉइंट तो मेकिंग एन एस्टिमेट, यस सर। दूसरा पॉइंट हो गया कि आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड जिसमें डेट और इक्विटी था। तीसरा पॉइंट हो गया रेजिंग द फंड्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। चौथा पॉइंट हो गया यूटिलाइजेशन, सॉरी उससे उससे पहले हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यस सर। उसके बाद, हाँ, उसके बाद हो जाएगा यूटिलाइजेशन एंड फीडबैक। और छठा पॉइंट हो जाएगा मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। छह पॉइंट हो रहा है। लास्ट वाला क्या बोला सर? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। सर पॉइंट पहला है मेकिंग एन एस्टीमेट और दूसरा क्या है सर? आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स, बताए। आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स। हो गया क्या? यस सर, हो गया 100 पॉइंट। ठीक।
ठीक है, पैर कैसा है जी तुम्हारा? ठीक है, होली के दिन ठीक हो गया था, खूब इधर उधर किए फिर सूझ गया है, लेकिन ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। ठीक, तो पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर है, 6 पॉइंट। यस यस सर। यस सर, क्लियर। अब जो हम लोगों को पॉइंट पढ़ना है, अभी अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी तो हम किसी को एंट्री देने वाला है नहीं। एक निधि करके है और एक कोमल। क्या फायदा होगा अभी आने से, लेकिन कोमल तो थी हमको लगता है पहले से। चलो ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे कि स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है टॉपिक? स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब जो जो चीज पाने का हम कोशिश कर रहे हैं वो तुम लोगों तक पहुंच रहा है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये सब बेसिक्स है एकदम, क्योंकि मतलब ये अगर नहीं होगा तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे आज से लेके 1 आध 2 3 क्लास तक, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे? स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या? स्कोप का मतलब दायरा। स्कोप का मतलब क्या हो गया? दायरा। सब्जेक्ट मैटर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या आप पढ़ते हैं, किस किस एक्टिविटीज को एज अ फाइनेंस मैनेजर आपका काम है देखना। अगर आप एक फाइनेंस मैनेजर हैं किसी कंपनी के, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बिजनेस के एक्टिविटीज के ऊपर मॉनिटर करें, आप उन एक्टिविटीज को अपने परव्यू में रखें। राइट? क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला कहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। राइट? सबसे पहला स्कोप क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या कहता है? फाइनेंसिंग डिसीजन। और जो तीसरा डिसीजन जो हम लोगों को पढ़ना है वो है डिविडेंड डिसीजन। और इसी में एक लिक्विडिटी डिसीजन करके भी है जो हम लोगों को पढ़ना। राइट? यस और नो? चौथा क्या बोले? रोल नंबर यस सर। रोल 51। यस सर, देख रहे हैं सर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और एक और है सर, डिविडेंड डिसीजन। तो कैमरा ऑन कर लो। यस सर। लिक्विडिटी डिसीजन, ये डिविडेंड और लिक्विडिटी दोनों एक साथ। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर मैंने कहा कि भाई स्कोप हम लोगों को पढ़ना है, और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं क्या? डिसीजन। मैंने क्या लिखा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिखवाया, फाइनेंसिंग डिसीजन लिखवाया, डिविडेंड डिसीजन या उससे जुड़ा हुआ लिक्विडिटी डिसीजन। ये 4 डिसीजन है प्रमुख तौर। तो अगर आप फाइनेंस मैनेजर हैं तो आपका काम है निर्णय लेना। आपका काम क्या है? निर्णय लेना। यू आर देयर टू टेक डिसीजंस ऑन सर्टेन मैटर्स, ऑन सर्टेन इश्यूज। तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सुनना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग। इसको हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अच्छा, कोई भी कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, वो अपने साइज के हिसाब से अगर वो देखे तो रिसोर्सेज उसके पास लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है उसके पास? Every company has a limited resource in respect to its size. Right? कोई भी दुनिया की कंपनी नहीं है जो ये कह सकती कि भाई उसके पास तो रिसोर्सेज क्या है? अनलिमिटेड। Nobody can say this.
अब जब आप ये समझ गए कि रिसोर्सेज लिमिटेड, क्या दुनिया में की कमी है? बिजनेस प्रपोजल्स की कमी है? नहीं। आपने कहा बिजनेस प्रपोजल्स की कमी, बिजनेस प्रपोजल्स है कि भाई मेरे पास तो रिसोर्स लिमिटेड है। वही सिंपल इकोनॉमिक्स है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड और रिसोर्सेज लिमिटेड। यहां पे अनलिमिटेड क्या है? प्रोजेक्ट्स। बिजनेस प्रपोजल्स अनलिमिटेड, लेकिन लिमिटेड क्या है? रिसोर्स। इन्वेस्टेबल पैसा क्या है? लिमिटेड। तो अब आप सोचिए, कैन यू इन्वेस्ट इन ऑल, invest in all the projects? The answer is no, you can't. Then you will have which business proposal is best for you. Know-how, business में जो resources available है उसके का आइडेंटिफाई करना कि भाई कौन सा बिजनेस प्रपोजल आपके लायक, आपके बिजनेस को बेस्ट कौन सा प्रपोजल। वो जो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस बिजनेस प्रपोजल इज बेस्ट, उसमें आप चाहिए इस पूरे सिलेक्शन आइडेंटिफाइंग के प्रोसेस इन्वेस्ट, इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल बजटिंग। क्या कहते हैं? कैपिटल। बहुत बढ़िया आप एग्जांपल देखिए कि जियो, जो रिलायंस इंडस्ट्री थी, वो पिछले जो जियो को उसने लॉन्च किया 2016 में, उसके पहले 8-9 साल से लगातार प्रॉफिट अर्न कर रही थी, लगातार प्रॉफिट अर्न कर रही थी। बैलेंस शीट को वो इकट्ठा कर रही थी, कैश इन हैंड रख रही थी, कैश इक्विवेलेंस वो रख रही थी, कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। तो बहुत जगह वो पैसा लगा सकती थी, रिलायंस इंडस्ट्री चाहती तो बहुत जगह पर पैसा लगा सकती थी, लेकिन उसने आइडेंटिफाई किया बिजनेस ट्रेंड के हिसाब से, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, मार्केट में लेवल ऑफ कंपटीशन के, गवर्नमेंट पॉलिसी की मैक्रोस को ध्यान में रखते हुए, अपने पास जो रिसोर्स अवेलेबल था उसको ध्यान में रखते हुए कि भैया हमको तो रिलायंस जियो खोलना है। क्या खोलना है? रिलायंस जियो। वो चाहती तो क्या इसके अलावा कोई दूसरा प्रपोजल नहीं होता उसके पास? हो सकता था। रिलायंस का इन्वेस्टमेंट बनाया क्लीन एनर्जी में, जानकारी है क्या आपको? मुकेश क्या इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया कहां? ग्रीन एनर्जी में, जिसको हम लोग क्लीन एनर्जी भी कहते हैं, राइट? क्या उनके पास कोई और प्रपोजल नहीं था? प्रपोजल तो होगा, होगा ना। लेकिन आप जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप किसी निर्णय पे पहुंचते हैं, तो आपको बहुत सारे कंसिडरेशंस करने पड़ते हैं। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आपको देखना पड़ता है, लेवल ऑफ कंपटीशन आपको देखना पड़ता है, हमारी कॉम्पिटेंसी देखनी पड़ती है बिजनेस की कि भाई हम किस चीज में कॉम्पिटेंट हो सकते हैं। ये सारी चीजें, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है उसी को आप कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और जब आप किसी फिक्स्ड एसेट में पैसे को डिप्लॉय करते हैं, जब आप लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? लगा दिया भूल गए, कैश फ्लो जनरेट करने के लिए। क्या जनरेट करने के लिए? कैश फ्लो। प्रॉफिट को, हाँ, प्रॉफिट को आहिस्ता आहिस्ता साइड करो।
क्या जनरेट करने के लिए? कैश फ्लो जनरेट। और कौन सा कैश फ्लो? फ्री कैश फ्लो। आजकल ये वर्ड बहुत पॉपुलर है, फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो जनरेट कर। फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज फ्री कैश? सर जो बिजनेस की कंटिन्यूटी में जो कैश यूज नहीं किया जाता है। कैमरा ऑन करो पहले तुम। हेलो। यस सर, यस सर, क्या क्या? यस सर। सब कर रहे थे। इससे रहा नहीं गया, इससे बोल दी, फंस गई, है ना? क्या मोनिका? सर मोनिका नहीं, नंदिनी। अच्छा सॉरी नंदी। मोनिका इज नॉट हियर इन द क्लास। यस सर, एब्सेंट है। एब्सेंट है। योर रोल नंबर इज 7। यस सर। गुड, ठीक है। तुम्हारा आंसर गलत था। फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ? सुन लो ध्यान से। हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि बिजनेस में जो भी पैसा लगता है, हर फाइनेंस का कॉस्ट होता है। हर फाइनेंस का क्या होता है नंदी? Every finance which goes into the business has what? Has cost, है ना? चाहे वो डेट हो या इक्विटी हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो या बॉन्ड्स हो या डिबेंचर्स हो, कुछ भी हो। हर फाइनेंस जो बिजनेस में गया उसका कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगा, राइट? कॉस्ट का मतलब पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, कैश इज गोइंग आउट। समझ रहे हैं? तो हमने जब कैश लिया, किसी से बोरो किया, तो उस बोरो करके जो हम 6% पे मान लीजिए ले रहे हैं, और हम उसको अगर 4% पे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कौन सी बुद्धिमानी हो गई? हम आपसे ले रहे हैं 6% पे और अपने बिजनेस में लगा रहे हैं 4%। कोई बुद्धिमान बिजनेसमैन करेगा क्या? नहीं करेगा। तो यहां पे आपका कैश फ्लो कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं, कैश फ्लो नेगेटिव। तो फ्री कैश फ्लो कहने का मतलब कि हम जो फंड रेज कर रहे हैं या रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए कॉस्ट कैपिटल। क्या कहा मैंने? रिटर्न ऑन कैपिटल हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो जितना डिफरेंस होगा, जितने से वो बड़ा होगा, उसी को हम लोग कहते हैं फ्री कैश। क्या कहते हैं? फ्री कैश। तो अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इस बिजनेस में, इस प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगाऊंगा, तो मुझे उससे क्या चाहिए? फ्री कैश तो चाहिए। आने वाले समय में मुझे कैश चाहिए। उस बिजनेस प्रपोजल से मुझे कैश जनरेशन चाहिए। और कौन सा कैश? फ्री कैश। फ्री कैश को मुझे चाहिए। तो अगर मैं फ्री कैश की बात करूं, तो बिजनेस प्रपोजल जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ऐसे प्रपोजल में करते हैं कि आप लंबे समय तक अपने बिजनेस के लिए फ्री कैश जनरेट करते रहे ऑन ऑनगोइंग बेसिस। ऑन विच बेसिस? ऑनगोइंग बेसिस, राइट? आई बात समझ में? हेलो। यस सर। यस। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक मेरे ख्याल से, और हम लोग फिर अटेंडेंस के लिए सबको वेट करना।